Welcome to this special edition of Thursday Thought Leaders with Harvinder Narula on BW Healthcare World. In honor of the World Brain Day, we are delighted to feature Dr. Arun Garg, who is the Chairman of Neurology and Neurosciences at Medanta Hospital, Gurugram. Dr. Garg is a senior neurologist with a primary focus on stroke. His remarkable career includes pioneering the role of thrombolysis in acute stroke management in India. Dr. Garg has significantly contributed to the development of advanced neurology and has set up advanced neurology care at Max Hospital, Patparganj. Join us as we delve into Dr. Garg's invaluable insights and contributions to the field of neurology on this World Brain Day. Thank you so much for joining us, Dr. Garg, on BW Healthcare World. It's such a pleasure to have you with us. Dr. Garg, first thing, आप neurology के field में, how did you get drawn towards neurology as your area of expertise post your MBBS? And what has kept you passionate about it throughout your career? क्योंकि आपका जज्बा, आपका पैशन दिखाई देता है आपके काम में, सर। जी जी नहीं, देखिए, ये मेरे को लगता है कि दिस इज ऑल रिटन, डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय गॉड, और वो हम तो उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इट वाज इन माय जीन्स दैट आई ऑप्टेड फॉर साइंस इन माय स्कूलिंग एंड व्हाइल स्टडीइंग ब्रेन. So it fascinated me from very beginning. Its intricacy, the complex working pattern of brain, the n number of messages it is receiving and then sending signals, transmitting signals to body parts, and then it is controlling each and every movement of body as well as mind. So very fascinating. It intrigued me, and I think that was the beginning of the journey. And then later what happened, unfortunately, my mother suddenly lost her eyesight. And I was studying in school at that time, and उस समय फिर मेरे को I had to consult a ophthalmologist, and ophthalmologist ने कहा कि यार नहीं है, ये तो आईज तो ठीक है इनकी, अब आईज ठीक है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो उस समय जब मेरे को मालूम पड़ा कि इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन विच वाज डैमेज्ड एंड दैट अफेक्टेड हर आईज, सो दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बी न्यूरोलॉजिस्ट एंड आई हैव टू रीड हाउ ब्रेन फंक्शंस। तो इस तरह से वो जर्नी चालू हुई। Amazing. I mean, you do not know what triggers the path ahead. It's beautiful, sir. And sir, I'm told that you have treated some of the most challenging neurological conditions in your career. And can you tell us a little bit more about that? And also, what is it that you did differently that addressed these challenges, sir? अब देखिए, जब हमने न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड दिस न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स बैक। अब न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस जब चालू किया तो उस समय न्यूरोलॉजी ब्रांच को एक ऐसा ब्रांच माना जाता था जहाँ पे कि लोग कहते थे कि 4D इज कि यू डिटेक्ट द पेशेंट, यू डायग्नोज द पेशेंट एंड यू डिस्चार्ज द पेशेंट, और अल्टीमेटली पेशेंट लीड्स टू डेथ. दैट वाज न्यूरोलॉजी. There was we could not diagnose because we did not have facility for CT scan or MRI, and then we did not have a facility. Even if you diagnose the patient, we could diagnose patient because of our clinical acumen, लेकिन उसके बावजूद भी diagnose कर लिया तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं होता था, ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही नहीं होते थे उस समय. अब उसके साथ जब इवोल्यूशन हुआ तो अब देखिए सीटी स्कैन आया, सीटी स्कैन के बाद एमआरआई आया, एमआरआई के बाद फिर हमने देखा ट्रीटमेंट में एवोल्यूशन होने लगे, देन क्लॉट बस्टिंग ड्रग आने लगी, जो एक टाइम था कि स्ट्रोक जिसको कि आप डेडली डिजीज मानते थे, किसी को स्ट्रोक हो गया तो उसकी लाइफ खत्म हो गई, क्लॉट बस्टिंग ड्रग आई, उसने सिनेरियो ही चेंज कर दिया कि एक पेशेंट आप लेटा हुआ है, आपने उसको इंजेक्शन लगाया एंड पेशेंट खड़ा होकर चलने लग गया. तो ये चीजों ने कैसे इवोल्यूशन, मैं अपनी आंखों के सामने देखा न्यूरोलॉजी में कि कैसे. मेरे को एक ध्यान है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन जयपुर, तो मेरे को एक पेशेंट का सीटी स्कैन कराने के लिए यहाँ पे दिल्ली आना हुआ, क्योंकि एक सीटी स्कैन होता था दिल्ली दिस नॉर्दर्न उसमें जो दिल्ली के अंदर होता था. तो एक पेशेंट के साथ मैं सीटी स्कैन कराने के लिए दिल्ली आया, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं. और कैसे चेंज हुआ, फिर एमआरआई आए, एमआरआई भी एडवांस एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई, 3 टेस्ला एमआरआई, जो कि आपको बॉडी की, ब्रेन की एक एक चीज, एक एक नर्व दिखा देता है. तो
इतना इवोल्यूशन, और उसके बाद फिर क्लॉट बस्टिंग ड्रग जिसने कि आपके आउटकम को ही चेंज कर दिया। फिर आया एरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो कभी हम सोचते भी नहीं थे, हम कहते थे कि जिसका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड नो ट्रीटमेंट कैन बी डन। नाउ वी कैन डायग्नोज मेनी ऑफ द केसेस सफरिंग फ्रॉम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले मैं कहता था नहीं यार ये तो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको भेज दो, समझा दो, और उसको हम फैमिली को समझा के भेज देते थे। थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली. So we can diagnose n number of diseases which are now autoimmune disorders because of help of investigatory facilities. And then treatment evolution जिसमें कि we have n number of immune therapies. तो इम्यून थेरेपीज में स्टीरॉइड तो बहुत टाइम से अवेलेबल था, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन आया, उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस करने लगे, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आने लग गई। तो इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है कि आज के टाइम पे न्यूरोलॉजी इज द मोस्ट rewarding branch, I'll say, most rewarding branch. And sir, like we are talking about many other areas where India has progressed. Also in healthcare, how does the practice of neurology in India compare with the countries where you have worked or studied earlier, sir? यदि हम बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, हम यूरोप की बात करते हैं, हम यूएस की बात करें, यूएस में मैं यूमास में मैंने ट्रेनिंग लिया है, यूमास मैसाचुसेट्स बूस्टर के अंदर मैं रहा, वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ पेशेंट यदि 4 हैं 5 हैं, दिन भर में आपको 4-5 पेशेंट देखने हैं, और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, everyone is covered by insurance scheme. तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई कहीं पे कोई हेजिटेशन नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए आपको यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट इज पेइंग, इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग, तो पॉकेट पे कोई बर्डन नहीं है। तो यू गिव गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। और नंबर ऑफ पेशेंट कम है तो आप पढ़ते भी हो, रिसर्च भी कर रहे होते हो, तो देन यू evolution is definitely they are far ahead simply because they have resources and they have less number of population to cover. हिंदुस्तान का सिनेरियो यदि आप देखोगे तो कोई, मैं किसी को बताता हूँ कि आई सी 100 पेशेंट्स अ डे, तो कहता है कि यार न्यूरोलॉजी में आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको नहीं देखना चाहिए, यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर पेशेंट्स। मैं कहता हूँ कि व्हाई डोंट यू आस्क माय पेशेंट्स वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। तो देखिए ये हम उसको प्रैक्टिस डेवलप करते हैं। मेरे गुरु होते थे डॉक्टर अशोक पानगड़िया, उनके लिए कहा जाता था कि पेशेंट जब कमरे में एंटर कर रहा है तो कमरे में एंटर करते हुए उसका डायग्नोसिस बना देते थे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम स्पास्टिक पैरापेरेसिस और सेरिबेलर अटैक्सिया, वही हमने सीखा है। तो हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस का जो एक्यूमेन है वो अनलिमिटेड पावर है हमारे ब्रेन के अंदर। एट टाइम्स वी डोंट नीड इवन सीटी और एमआरआई टू डायग्नोज द पेशेंट। तो ये ब्यूटी है न्यूरोलॉजी की कि जैसे मैथमेटिक्स होती है ना 1+1 2, उसी तरह से कॉम्बिनेशंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स गिव यू डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस। और वो आप जब एमआरआई के अंदर देखते हो तो आप एंजॉय करते हो कि हाँ आपने सही डायग्नोसिस बनाया था। चाहे पेशेंट के साथ आई विल से दैट इट्स नॉट गुड कि कई बार आप कहते हो कि हाँ इसको मैंने कहा कि यार इसके ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ट्यूमर होना चाहिए एंड एमआरआई कंफर्म्ड इट, तो आई एम वेरी हैप्पी, दो पेशेंट इज नॉट। तो ये ऐसा होता है। तो हमने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बड़ी पॉपुलेशन को कैसे ठीक करना है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, वी आर डूइंग इन वेरी गुड वे। एंड डॉक्टर गर्ग, we were talking of technology और कैसे evolution हुआ है neurology का, neurosciences का, and it has changed the outcomes, what you were telling us. There are enough and many technologies coming in almost every month. There is something new which is being shared with us. What cutting edge technologies or techniques do you believe will revolutionize the field of neurology in the near future, sir? तो अभी तो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो है कि एलन मस्क ने चिप लगा दिया स्ट्रोक वाले पेशेंट को, और स्ट्रोक वाला पेशेंट ने अपना हाथ चलने लग गया, पैर चलने लग गया। तो ये जो है टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली आपने ब्रेन के डेड एरिया को वापस से जिंदा कर दिया। दो प्रैक्टिकल सेंस में जिंदा नहीं किया, एक्चुअली क्या है कि जो वायर जहां पे मिस कनेक्शन हो गया, जहां पे कनेक्शन कट गया था, उस कनेक्शन को उन्होंने इलेक्ट्रोनिकली वापस से रिस्टोर कर लिया। ब्रेन का एक पार्ट ठीक है, ब्रेन का कनेक्शन कटा हुआ है,
ब्रेन जहां से बॉडी फंक्शन कर रही है वो पार्ट भी ठीक है, तो उस कनेक्शन को जोड़ना है, उस कनेक्शन को उन्होंने बाहर से जोड़ दिया। तो ये एक बिगनिंग है। मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे स्क्रीन है, वर्चुअल स्क्रीन लगी हुई है, वर्चुअल कीबोर्ड है, मोटर न्यूरॉन डिजीज पेशेंट कैन नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ टंग इज पैरालाइज्ड, हाथ पैर नहीं हिला सकता, तो हाथ से भी इशारा नहीं कर सकता, तो उसको खाली आई के मूवमेंट, आई मसल के मूवमेंट से स्क्रीन के ऊपर ही कैन राइट। सो ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो ही कैन कम्युनिकेट। अब आने वाले टाइम में हमने सुना है कि शायद स्पीच एरिया से they can pick the words from speech area of brain which if it is intact, and immediately that will be converted into text. तो आप बोल तो नहीं पा रहे हो, लेकिन टेक्स्ट के साथ simultaneously immediately on the same time you are conversing with the opposite party. तो ये वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जो परमानेंट डैमेज को फाइट करने के लिए तो बन गई हैं। अब क्या आने वाले टाइम में कोई ब्रेन की एजिंग को रोक पाएगा? बॉडी की एजिंग पे काम चल रहा है काफी ज्यादा, क्या ब्रेन की एजिंग को भी हम रोक पाएंगे? आई डोंट नो। क्या हम अल्जाइमर्स डिजीज में जो अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है या टाउ डिपॉजिट होता है उसको रोक पाएंगे? यस, ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, ऑलरेडी इसकी ड्रग्स आ गई हैं टाइम से। यदि आपने डायग्नोसिस कर लिया कि ये दिस पेशेंट इज प्रोन टू डेवलप amyloid deposition and Alzheimer's disease in future, and you start injecting with the monoclonal antibody and patient को Alzheimer's से आपने बचा लिया। तो ऐसा होने लग गया, तो मतलब ब्रेन की एजिंग को तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहे हो ऑलरेडी। और बाकी तो मेरे को लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हम हो सकता है कि मौत पे तो काबू नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो ब्रेन है हमारा सुपर ह्यूमन सुपर कंप्यूटर जो है, हो सकता है कि हम इसके डेटा को कहीं पे स्टोर कर लें एंड दैट विल बी यूज्ड एज कंप्यूटर। ऐसा सुपर कंप्यूटर तो आज तक मैन मेड तो बना नहीं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को यदि हम सुपर कंप्यूटर जैसे यूज करने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा इवोल्यूशन होगा। That's a very beautiful thought of what can happen in the future. और सर हमने देख लिया जो दिमाग में होता है वो कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील हो जाता है। सर आपने अभी एक बात करी थी कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं बोलना उसको पिकअप करके इट कैन राइट। सेकेंड इज आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपकी मदर lost her eyesight, and then when you went for your screening you realized it was not because of the eyes, it was because of the brain. My question to you is, sir, how important is collaboration between neurologists and other medical specialties in treating complex neurological conditions? ये तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यदि मैं कहता हूं कि किसी को बढ़िया न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, आई एम लकी, आई एम वर्किंग इन मेदांता मेडिसिटी वेयर ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल अंडर वन रूफ, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसके बिना सर्वाइवल नहीं है। यदि मैं किसी को कहता हूं कि किसी कोई हेडेक करके मेरे पास यदि आया है पेशेंट और उसको मेरे को आई चेकअप कराना ही पड़ेगा, आई वांट आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ओपिनियन वेदर देयर इज डिस्क एडिमा, कहीं पे आंख में प्रेशर तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे आंख के अंदर जो ऑप्टिक नर्वस में एट्रोफी तो नहीं दिख रही है। यदि कोई पेशेंट आया है जिसको कि कंफ्यूजनल स्टेट है और मेरे को लगता है कि माय डायग्नोसिस इज ऑटोइम्यून एन्सेफलाइटिस एंड पेशेंट के कुछ रैशेज नहीं है, तो आई विल हैव टू कंसल्ट रूमेटोलॉजिस्ट कि कहीं इसका कोई रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। पेशेंट के स्ट्रोक आया है तो मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कहीं कार्डियक उसके कोई एलिमेंट तो नहीं जहां से कि क्लॉट जाके और ब्रेन को उसने वेसल को बंद कर दिया है। तो मल्टीपल स्पेशलिटीज का इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन, सी ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन हार्ट एंड एट द सेम टाइम हार्ट इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेन। तो यदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा, लेकिन यदि ब्रेन डेड हो गया तो हार्ट नहीं चल पाएगा। तो ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है जो एक दूसरे पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जैसे अभी आपने बताया कि अल्जाइमर्स के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स आ गई हैं, अगर टाइम पे दी जाए टू अ पर्सन हु इज प्रोन टू अल्जाइमर्स और कुड बी प्रोन टू अल्जाइमर्स, it can delay the problem and it can have a better life. Yes. But most people are not even aware of this, right? So what role do you believe that patient education plays not only in management and treatment of neurological disorders, but to also be aware of what should be done and when to get tested or what are the symptoms? And secondly, it is not just the patient. क्योंकि एक बारी problem हो गई, then it is the caregivers who need to be educated. So what is your view on this?
सी मेदांता में जब से हम हैं, मेदांता में हमने ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेदांता इज डूइंग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इट्स अ नेटवर्क, बिग नेटवर्क। तो जहाँ पे भी टीयर ए, वी आर वर्किंग इन टीयर ए सिटी, देन टीयर बी एंड टीयर सी एंड देन टीयर डी। तो हमने तो एक स्पोक एंड व्हील मॉडल क्रिएट किया हुआ है। spoke where in center Medanta is there, and then center mein there is Medanta, and then there are many spokes, primary centers, secondary centers. So Medanta is connected to secondary center through this digital media or what telemedicine and telemedicine, and then secondary center is connected to primary centers. तो ये जो स्पोक एंड व्हील और 3 tiers मॉडल जो बनाया हमने, स्पोक एंड हब मॉडल, दिस इज वेरी इफेक्टिव। और साथ में वी रेगुलरली डू कम्युनिटी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स वेयर वी गो और वी कॉल। सो वी कॉल फिजिशियंस, प्राइमरी लेवल फिजिशियंस जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, एमडी डॉक्टर्स होते हैं, उनको हमारे यहाँ पे बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, रेगुलर हम कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। और एट द सेम टाइम हम बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ पे कि वी गिव बेसिक टॉक्स कि कैसे आप किसी भी डिजीज के सिम्टम को समझो, उसको कैसे डायग्नोज करो और कैसे रिएक्ट करो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक का तो हमने पूरा एक ब्रेन रेस्क्यू प्रोग्राम बनाया हुआ है। स्ट्रोक इज जिसमें कि आप इफ यू कैन डायग्नोज स्ट्रोक इन टाइम, यू कैन सेव पेशेंट्स लाइफ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। तो स्ट्रोक में हम कहते हैं कि आप ये 6 सिम्टम है, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज देम इन टाइम, if you diagnose a stroke in time, then you send such patient, प्राइमरी सेंटर वाला उसको पेशेंट को भेजते हैं सेकेंडरी सेंटर पे। सेकेंडरी सेंटर है जहाँ पे कि एक बेसिक फैसिलिटी है कि वहाँ पे एक फिजिशियन है, वहाँ पे एक सीटी स्कैन है, वहाँ पे एक छोटा सा एक कमरे का आईसीयू है। वहाँ पे दे कैन थ्रोम्बोलाइज विद आवर गाइडेंस, दे कैन गिव क्लॉट बस्टिंग ड्रग टू देयर इटसेल्फ इन टीयर बी सिटी, एंड पेशेंट वहाँ पे ठीक हो जाता है। यदि ठीक नहीं होता देन देयर आर एम्बुलेंसेज व्हिच कैन ट्रांसफर पेशेंट टू अवर सेंटर फॉर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जहाँ पे कि हम तार डाल के उसको क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं विद इन 24 आवर्स। इफ दिस इज डन देन मेजर डैमेजेस कैन बी प्रिवेंटेड। तो स्ट्रोक में हम ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी और डिसऑर्डर्स में भी तरीका यही है कि आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करो। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट कैंपेन्स, यू हैव टू डू रेगुलर आउटरीच क्लिनिक्स, जहाँ पे आपने देखा, सिम्टम्स को देखा, समझाया, साथ में फिजिशियंस को ट्रेन किया, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। क्या है कि हमारी जो मेमोरी है ना, इट्स वेरी शॉर्ट लास्टिंग मेमोरी। तो उसको बार बार है ना, जब तक कि रस्सी से पत्थर पे निशान नहीं पड़ जाएगा तब तक वो परमानेंट नहीं होगी। तो वो तो करना ही पड़ेगा। How do you see the role of various initiatives like World Brain Day evolving in the next decade? हमें क्या करना चाहिए? इस तरह एक वर्ल्ड ब्रेन डे आ गया, उस दिन हम कोई कॉन्वर्सेशन कर लें, इससे आगे बढ़ के what do you think is something that can be done which will create a real impact? अब देखिए, मैं मतलब हमारी सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि हमारे हेल्थ केयर के में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पता नहीं वो के उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी चालू हुई, आयुष्मान भी चालू हुई, क्या वास्तव में कोई इसका ऑडिट हो रहा है कि कितनी इफेक्टिव है? क्या वास्तव में इसके एक्चुअल लेवल पे, जहाँ पे हम चाहिए कि जैसे राजीव गांधी कहा करते थे कि एक्चुअल आदमी के पास 10% पहुंचता है, क्या ये इस तरह की स्कीम्स वास्तव में जिनको जरूरत है वो उनको मिल रही है, या कोई हम जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं उनके कनेक्शंस को मिल रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ उसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं? उसका ऑडिट होना जरूरी है, उसका एक्चुअल सही जहां पे जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम इज वेरी गुड, स्कीम इज वेरी गुड। दूसरा ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि क्या स्कीम से हॉस्पिटल्स आर हैप्पी और डॉक्टर्स आर हैप्पी। यदि आप किसी चीज में 100 रुपए का खर्चा हो रहा है और आप उसको 10 रुपए 15 रुपए देना चाहते हो, वो कैसे अच्छे मन से उसको काम कर पाएगा? आप प्रैक्टिकलिटी तो आपको देखनी पड़ेगी ना, एक्चुअल कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी। सी मतलब डॉक्टर यदि कोई बना है तो ही हैज स्पेंट करोड्स ऑफ रुपीज टू बिकम ए डॉक्टर। किसी ने हॉस्पिटल बनाया तो उसने तो कितना खर्चा करके हॉस्पिटल बनाया। तो यदि वो जेब से खर्चा करता रहेगा तो नहीं दे पाएगा क्वालिटी। जब क्वालिटी नहीं देगा तो गड़बड़ चालू हो ही जाएगी ना। तो एवरीवन विल अवॉइड सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। I think सबसे पहला तो ये है कि स्कीम्स को मतलब इफेक्टिव बनाएं, इफेक्टिव प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इफेक्टिव होना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट आता है कि और क्या कर सकते हैं। तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे चालू होना चाहिए। मैं बहुत पहले से कहता था कि जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम किया है, या हमने प्लेग को इरेडिकेट किया है, या हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, हमारे को लेने पड़ेंगे एक एक डिजीजेस को लेने पड़ेंगे जो एपिडेमिक्स हैं। जैसे कोविड को हमने कंट्रोल किया,
तो कोविड वाला इज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर वर्ल्ड, इट इज अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट्स एंड देन वैक्सीनेशन ड्राइव वाज एक्सीलेंट। तो हम और चीजों में भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। अब हमारे को मालूम है कि स्ट्रोक इज सेकंड लार्जेस्ट किलर। जब सेकंड लार्जेस्ट किलर की बात आ रही है तो हमारे को उस पर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना ही होगा ना, उसके बिना नहीं होगा। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव होंगे तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर उसमें साथ में खड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जब बात करते हैं, यू नो, देयर आर दीज रैपिड एडवांसमेंट्स इन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी। हाउ डू यू फोरसी इट्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? तो अभी जैसा हमने बात किया कि एलन मस्क ने जब चिप बनाई, तो यदि किसी का पैरालिसिस है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड लेफ्ट साइड में चिप लगा दिया जो डिस्कनेक्टेड पार्ट को कनेक्शन कर दिया, एंड पेशेंट स्टार्टेड मूविंग बिकॉज द ऑर्गन वाज ओके द जहां से था प्रॉब्लम उसको उन्होंने वापस से कनेक्शन जोड़ दिया और काम करने लग गया। वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज हमने देखा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज, जहां पे पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक एंड यूज लिम्स, एंड ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू दिस वर्चुअल कीबोर्ड। तो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आई का भी ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल आई बन गई है, जिसमें कि यदि पेशेंट कैन नॉट सी, there is chip is implanted in occipital area and patient can start seeing. So this is what is the advantage of brain computer interface. And sir, how is Medanta integrating mental health care with neurology, especially, you know, given the growing recognition of the connection between mental health and neurological disorders? What do you think Medanta is doing to integrate these two? See, एकदम से मैं ये कहूँ कि कोई बहुत स्पेसिफिक इस फील्ड में कोई काम हो रहा है ऐसा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम ये देखते हैं न्यूरोलॉजी ओपीडी में भी वी सी लार्ज नंबर ऑफ मेंटल केसेस दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, एट टाइम्स पेशेंट कम इन विद साइकोसिस। So there is a big team of psychologists and psychiatrists working in integration with neurologists. तो हम आपस में डिस्कस करते हैं पेशेंट के जो भी, ऐसा नहीं होता कि न्यूरोलॉजिकल किसी को डिसऑर्डर है एंड एट द सेम टाइम इफ पेशेंट इज हैविंग डिप्रेशन देन डिप्रेशन विल आल्सो बी ट्रीटेड बिकॉज वी हैव ए बिग टीम। तो हॉस्पिटल में जो आ रहा है उसको तो हम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे दो वी आर डूइंग सम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कोई मास स्केल पे कोई बड़ा प्रोग्राम अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया, जो कि करना चाहिए। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट्स, दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट, वर्किंग एज सीईओज इन बिग कंपनीज, एंड दे कंप्लेन ऑफ मेमोरी डिस्टर्बेंस कि डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त जा रही है, मेरे को, मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ। तो मैं उस समय उसको कहता हूँ कि नहीं, आपकी याददाश्त नहीं जा रही है, आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से आपने तैयार नहीं किया हुआ, यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग बट यू आर नॉट फिट फॉर मल्टीटास्किंग। आप मेरे से बात कर रहे हो, साथ में फोन पे भी बात कर रहे हो, आप कुछ लिख भी रहे हो और किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो, यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, एंड इस प्रोसेस के अंदर यू आर नॉट रजिस्टरिंग सर्टेन इंफॉर्मेशंस जिसको कि आप मेमोरी डिस्टर्बेंस मान रहे हो। So, क्या होता है कि मेमोरी, मैं बात मेमोरी किस कर रहा हूं तो मैं इसलिए कि अटेंशन नहीं है, यदि हम अटेंटिव नहीं है तो वी डोंट रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, जब रजिस्टर नहीं किया तो हम उसको रिटेन नहीं करेंगे तो हम रिकॉल नहीं करेंगे, और रिकॉल नहीं करेंगे तो हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, दिस इज मेमोरी डिस्टर्बेंस। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि लोगों को जब रेट रेस में भाग रहे होते हैं तो उनको उसने वो गाड़ी ले ली, उसने वो बंगला बना लिया, मेरे को भी अचीव करना है, तो उस रेट रेस में आप धमाधम काम करे जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपको सोना भी जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट काम करना है, स्लीप इज ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट। लोगों को नहीं पता कि स्लीप इज एक्टिव साइकिल। स्लीप में ब्रेन के सर्टेन एरियाज जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज एक्टिव। आप फंक्शनल एमआरआई कराइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप ये एरिया तो अभी भी एक्टिव है ब्रेन का, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज इट इज फिल्टरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड कंसोलिडेटिंग योर मेमोरी एंड री एनर्जाइजिंग यू, एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है, मेमोरी को कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम सोते नहीं है, रात तक देर तक जग रहे हैं, फिर 2-3-4 पैग लगाया और फिर जम के आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और सुबह 2-3 घंटे सोने के बाद आप उठ गए, वापस काम में लगे, तो अल्टीमेटली you'll lose your memory, you'll lose your health. तो ब्रेन भी गया, बॉडी भी गई। And Dr. Karan, what is the role of genetics that it plays in the diagnosis and treatment of neurological disorders? How is genetic research shaping the future of neurology, sir?
अब देखिए जेनेटिक जैसे कि और इवोल्यूशन हुआ है, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात की हमने, या स्ट्रोक की बात की, या एमआरआई और फंक्शनल एमआरआई सारी बात की, उसी तरह से जेनेटिक वाले फील्ड में भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे जो जिनका हमारे को पता भी नहीं होता था, हम एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे उनको कुछ नाम दे देते थे। अब इतना ज्यादा टेस्ट आ गए, जेनेटिक टेस्ट, एन नंबर ऑफ, उनके नाम भी याद करना पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि होल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा लो या क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा लो, तो वो टेस्ट आने लगे। उनकी अभी कितनी एक्यूरेसी है आई डोंट नो। सो टेस्ट की एक तो होती है सेंसिटिविटी की, आप टेस्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको डिफेक्ट को कैच कर पाए। फिर उसके बाद होती है उसकी स्पेसिफिसिटी की, जब उसने कैच कर लिया तो पॉजिटिव जो है वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यदि पॉजिटिव है, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी होता है, तो स्पेसिफिक जो होगा वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टेस्ट की होना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेनेटिक टेस्ट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि हम अभी तक जो एक फैमिली काउंसलिंग नहीं कर पाते थे कि कौन सा किसको डिजीज जेनेटिक चल रही है। यदि मान लीजिए किसी को स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया है फैमिली में, जो कि अब कंफर्म कर लेते हैं हम डायग्नोसिस के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि यार देखो, यू आर सफरिंग फ्रॉम स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट यू 50% ऑफ योर किड्स मे सफर फ्रॉम स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया। तो बेटर ये रहेगा कि आप शादी तो कर लो, लेकिन बच्चे आपके खुद के नहीं होने चाहिए, आप अडॉप्ट करो, बच्चे आपके खुद के नहीं करो, तभी जाके इस साइकिल को ब्रेक करोगे, नहीं तो हर नई जनरेशन के साथ जल्दी वो होने लग जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि हम फैमिली काउंसलिंग करके उनको ये लॉन्ग टर्म जो बढ़ता जा रहा है, हर साइकिल के साथ, हर जनरेशन के साथ जो डिजीजेज और नई पॉपुलेशन क्रिएट होती जा रही है, उसको रोक सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट भी है, जिनको परमानेंट क्योर भी मिल जाती है। वंस यू डायग्नोज देम, देन यू कैन क्योर देम। Dr. Garg, what is your message on the World Brain Day for everyone? मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे कि पहला सुख निरोगी काया। तो यदि आपकी काया निरोगी है तो आपका ब्रेन भी निरोगी रहेगा। तो मैंने बताया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि हेड सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ब्रेन यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हार्ट है, यहाँ से बैठ के उसको कह रहा है कि यदि तू बदमाशी करेगा तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो काया को ठीक रखिए, ब्रेन ठीक रहेगा। तो काया को कैसे ठीक रखना है? तो अच्छा खाना है, अच्छा एक्सरसाइज करनी है, अच्छा सोच रखना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी मील्स, मेडिटेरेनियन डाइट, यदि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स एंड नट्स आपकी डाइट के अंदर है तो आप चिंता नहीं करिए, आप बढ़िया लॉन्गेविटी आपको मिलने वाली है। सर, एक और चीज आप भूल गए जो आपने पहले बोली थी, स्लीप. I think most of us are missing out on our sleep these days. Sir, thank you so much for talking to us. It is such important information that you've shared, और आपने जो हमारे साथ शेयर किया of the technological development, जिसने हमारे को एवोल्यूशन करके उस स्टेज पे ले आए हैं कि आज हमें पता है कि अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें ये भी पता है कि किस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो वी कैन एक्चुअली लुक एट प्रिवेंटिंग or delaying the aging factors as well. So thank you so much for sharing all this information with us. Thank you.